পাছটো বনালোঁ। এই ঠাণ্ডা ভাগৰো লাগিছে। আজি অকল মই কৈ আহিছোঁ, তুমিতো একো খোৱাই নাই। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ টাৱাং টুৰ ভ্লগ ডে 3 পাৰ্ট 2 ভ্লগলৈ। আমাৰ পাৰ্ট 1ত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে টাৱাং মনেষ্ট্ৰী, আৰু আজি আমি আপোনালোকক দেখাম টাৱাঙৰ ৱাৰ মেমৰিয়েল। আৰু টাৱাং মনেষ্ট্ৰীৰ পৰা আমি বৰ্তমান আহি পাইছোঁহিয়ে। প্ৰথমে পাৰ্কিং কৰি থওঁ, গাড়ী পাৰ্কিং কৰি থৈছোঁ। এইফালে আছে ৱাৰ মেমৰিয়েল, যাম আৰু এতিয়া এনেই কিবা কিবি খাম আৰু ভোক লাগিছে। টেণ্ট আই লাভ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, এইফালে আছে ৱাৰ মেমৰিয়েল। নাইট শ্ব' আছে, আৰু নাইট শ্ব'ৰ কাৰণে আমি এইফালে টিকেট বুক কৰিবলৈ যাম। ৱাৰ মেমৰিয়েলটো চোৱা নহ'ব, আজিতো চোৱা নহ'ব, কাৰণ সোমবাৰে বন্ধ থাকে বুলি কৈছে, আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা বেলেগ কিবা চাবলৈ যাওঁ, ঘূৰি যাওঁ। ডি চি অফিচত 3টা বজাত মাতিছিলে, এতিয়া আকৌ ডি চি অফিচত যাব লাগিব। এতিয়া চাওঁ, সুধি চাওঁ যদি ভিতৰত এনেই চাবলৈ দিয়ে। আজিতো সোমবাৰ বন্ধ থাকে বুলি কৈছে। নাই ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ যেতিয়া চাওঁ বুলি সুধি চালোঁ, কিন্তু আজি বন্ধ, খুলি দিয়া নহ'ব, আজি এলাউ নাই বুলি ক'লে। সেইকাৰণে ভিতৰত আকৌ চোৱা নহ'ল, সেইকাৰণে বাহিৰতে অলপ চাই দিলোঁ আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া ক'ত যাম? এতিয়া আমি আকৌ ডি চি অফিচ যাম নেকি, কাৰণ ইয়াত চাকৰি কৰাখিনিৰ কাৰণে হ'ব বুলি ক'লে, কিন্তু 5টা বজাত মানে বুমলা পাছ 5টা বজাত দিম বুলি ক'লে। চ' আমি 5টালৈকে ৰখি থকা নাই, আমি প্ৰথম ডি চি অফিচ গৈ আহোঁ। যদি তাত নহয় তেতিয়া ইয়াত বনাম। ইয়াত মানে চবৰে নহয়, যাৰ যাৰ চাকৰি আছে তেখেতলোকে বনাব পাৰে আৰু। অ'কে, ৱাৰ মেমৰিয়েল ডি চি অফিচ। ঠাণ্ডাত কপি কপি আছোঁ। পাছটো বনালোঁ, ডি চি অফিচ মানে টাৱাং ডি চি অফিচত পাছটো বনালোঁ আজি। কালি মৰ্ণিঙত ৱাৰ মেমৰিয়েলত গৈ আমি অকল এটা ষ্টাম্প মাৰিব লাগে, সেইটো ষ্টাম্পটো মাৰি আমি বুমলা পাছলৈ যাবলৈ ৰেডি হ'ম। আজি নহ'ব নেকি? আজি নহ'ব, আজি ইয়াত মানে টাইম লৈ আহিব লাগিব, এদিন ইয়াত লাগিবই পাছটো বনাবলৈ। তো এদিনৰ পিছতহে আমি বুমলা পাছটো পাম। ইয়াত অকল লিখিহে দিয়ে, আমি ৱাৰ মেমৰিয়েলত গৈ আৰ্মিবিলাকে মানে কিবা ষ্টাম্প এটা মাৰি দিয়ে, সেইটো মাৰাৰ পিছতহে আমি বুমলা পাছলৈ যাব পাৰিম। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ টাৱাঙৰ বুদ্ধ ষ্টেচু চাবলৈ। ডি চি অফিচৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে গধূলি হৈ গ'ল। ষ্টেচু চাম আৰু কিবা কিবি খাই ক'ৰবাত যাম। এইটো চাওক, यार रास्ता बहुत खतरनाक है। मिल जाएगा, 2 रास्ता मिलेगा। हाँ आगे जाकर 2 रास्ता मिलेगा, नीचे से मत जाना, ऊपर से जाना, ऊपर से जाना, यहाँ से ऊपर से जाना। ठीक है, थैंक यू अंकल। मोस्ट वेलकम। अंकलजनक आमी सुधि লৈছিলোঁ
টাৱাঙৰ এটা বহুত ভাল মানে হস্পিটেলিটি হয় সিহঁতৰ বহুত ভালেই। এইবিলাক মানুহ চাবলৈ আহিছে। এইটো চাওক ছানছেট, ইয়াৰ পৰা ছানছেট চাবলৈ ভাল আছিলে। চাওক তুমি মিছ কৰিলোঁ। এইটো আছিলে বুদ্ধ ষ্টেচুৰ এইটো সৰু এটা মন্দিৰ হয় আৰু তাৰপিছত আমি এখন কাপোৰ ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ আহিলোঁ ৱাৰ মেমৰিয়েল। নাইট প্ৰগ্ৰাম আছে আৰু বহুত মানুহ আহিছে এনেকৈ। এখন কেফে, এইখন চিটি। কি খাইছা? সাবুদানা। এতিয়া আমি সাবুদানা খাই আছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰগ্ৰেম চাব গৈ আছোঁ। ইয়া বাবলা 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 থিয়েটাৰত হ'ব। আমি গৈ আছোঁ। এইটো হ'বগৈ আহিলোঁ। বহুত ভাগৰ লাগিছে। মানুহবোৰ গৈ আছে। প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ আহি কিবা কোৱা ঐ। অঁ এই কিবা চাবলৈ আহিছোঁ, খালি বুজি পোৱা নাই কি চাবলৈ আহিছোঁ। অঁ মানে অদ্ভুত লাগিছে, মানে ক'ত আহিলোঁ নিচিনা লাগিছে। অ'পেন চিনেমা হল মানে আগৰ দিনত থিয়েটাৰ চলে যে বাগানত, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি চাবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া হেৰি ভাওনা চাবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি চাই লওঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ কি দেখায়। ये हिंदुस्तान की सरजमीन का वो हिस्सा है जिसकी सूरज सबसे पहले कदम उसी करता है। अरुण अर्थात सूरज की पहली सरगर्मी का अड्डा है, इसीलिए इसको अरुणाचल यानी सूर्य की
पहली रोशनी से प्रकाशमान हुई। प्राकृतिक सौंदर्य से आभूषित हमारे देश का गौरव, हमारे देश की पहचान। यहाँ का ऊंचा उतंग पहाड़ बर्फ का शाही लबादा उड़े बादशाहों सा इतराया करता है। यहाँ के मठों से आते बौद्ध वृक्षों के मंत्र जाने कितने गुमराहों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। अमन यहाँ का एक छत्र राजा है और प्रगति और समृद्धि इसके दरबार। अमन यहाँ का राजा है क्योंकि इसकी निगहबानी हम करते हैं। हम इसके प्रहरी हैं। हम यानी कि तवांग में तैनात हिंदुस्तानी सैनिक। हम यानी जज्बे और बहादुरी के वो पुतले जिसके रोम रोम में बसा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और सिर्फ हिंदुस्तान। चुंगितसर लेक नाम की इस खूबसूरत झील ने माधुरी नाम तब अपना लिया जब मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित फिल्म कोयना की शूटिंग का हिस्सा बन इस दिलजोई फजा में आई। भूकंप से निर्मित इस झील में पुराने खुश्क दरख्त यूं खड़े हैं तवांग की स्थानीय जनजाति की मोनपा संस्कृति के पारंपरिक नृत्य संगीत से ताल मिलाकर हम भी खूब नाच गाते हैं और थिरकते थिरकते करते हैं उस मान्यता को मजबूत जो कहता है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता, मेलो मिल्लत मोहब्बत और खुलूस वाला देश है। नृत्य गायन और प्रतियोगिताओं के मीठे समर से लदा तवांग उत्सव का जो छतनार पेड़ आज खड़ा है उसका बीज बोया गया था 16वीं शताब्दी में। और तवांग संस्कृति का तो कहना ही क्या, ये संस्कृति हम भारतीय सेना के जवानों की तरह ही जीवट है जो जाने कितने विप्लवकारी सदियों के गलियारे लांघ कर हम तक आई है। तवांग का इलाका 500 से 600 ईस्वी तक मोम बार्किटन के समर्थ शासन के अधीन हुआ करता था। खूब भला फूला था तभी। फिर यहाँ की सरजमी पर धीरे धीरे तिब्बत और भूटान की हुकूमत काबिज हो गई। 1844 में ब्रिटिश यहाँ के हुक्मरान बन बैठे। ब्रिटिश इलाकों के बाजारीकरण में माहिर थे। तवांग का वो इलाका जो हिमछादित पहाड़ों की ओट और हरियाली पेड़ों की झुरमुट में छिपा बैठा था उसे दुनिया के सामने जाहिर कर दिया इन ब्रिटिश हुक्मरानों ने। नतीजन इस दिल फरेब इलाके का दीदार करने हजारों की तादाद में सैलानी यहाँ उमड़ने लगे। खूबसूरत तवांग पर सिर्फ पर्यटन प्रेमियों की नजरें ही नहीं बल्कि लोभित नजरें भी पड़ने लगी। शायद इसी वजह से ब्रिटिश प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन ने सन 1914 में इस इलाके की 890 किलोमीटर की हदबंदी कर डाली जिसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। शिमला अधिवेशन के त्रिगुटीय सम्मेलन में तिब्बत, ब्रिटेन और चीन जिसका हिस्सा थे, इन सभी शिरकतदारों ने भारतीय हदों को परिभाषित करती इस सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को अपनी स्वीकृति दी। पर जाने क्यों आगे चलकर चीनियों को ये सीमा रेखा नागवार गुजरने लगी। अपनी आजादी के 3 साल बाद सन 1950 में जब भारत ने इस सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को वैधानिक अस्तित्व दे दिया तो साल भर पहले चीनी गणतंत्र का आजाद परचम फहराने वाला चीन और भी भड़क उठा। दोनों देशों के आपसी रिश्तों की तल्खियां समय के साथ बढ़ती रही। लंबी परातंत्रता और विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के लंबे सिलसिले से भग्न चुंबल भारत अपनी आजादी की उन्मुक्त हवा में खुद को पुनर्गठित कर ही रहा था कि मौका परस्त चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। तब आजाद भारत की सैन्य शक्ति अपनी बाल्यावस्था में थी और चीनी हिंदुस्तान के बाबत ये भूल गए
कि हिंदुस्तान वो मुल्क था जहां हक और हुकूक के लिए एक नन्ही चिड़िया भी बाज से लड़ने का मुद्दा रखती थी। मेरे वतन मुझे तेरी कसम हम अपना फर्ज निभाएंगे अब तलक जिए बस तेरे लिए मर जाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और हिंदुस्तानी सैनिकों का सीना तो हौसले का सबसे बड़ा सरनामा रहा है। ये हिंदुस्तानी वीरों का हौसला और पराक्रम ही है कि सदियों दर सदियों सैकड़ों आक्रमण झेल चुका हिंदुस्तान अब भी गर्वीली मुस्कान के साथ अशुद्ध अविजित खड़ा है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के इसी कभी न हार मानने वाले जज्बे पर मशहूर शायर इकबाल ने क्या खूब लिखा है। यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से बाकी अभी तलक है नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। 2 ঘণ্টাৰ শ্ব' হয় যিহেতু সেইকাৰণে ফুল ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰা নাই আৰু চাই বহুত ভালেই লাগিলে। আপোনালোকে যদি আহে এইটো মিছ নকৰিব। টাৱাঙৰ বিষয়ে আপোনালোকে বিশেষকৈ ইয়াতেই জানিব পাৰিব। এতিয়া আমি যাবলৈ ৰেডি যাম। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি। ইফালে মই আহি পালোঁ দেই গাইজ। ৰুম আছে আৰু আমি ভাত খাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। বহুত ঠাণ্ডা গাইজ, বহুত ঠাণ্ডা, নোৱাৰিছোঁ আৰু। চ' লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। কাইলৈ বুমলা পাছ এতিয়া গৈ আমি আছোঁ ভাত খাবলৈ গৈ আছোঁ। এণ্ড পাৰ্মিট আমি বনাই ল'লোঁ অলৰেডি। অ'কে, চি ইউ নেক্সট ব্লগ।